Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 11 January 2021 and I am teaching you chapter number 20 and name of the chapter Birth of a Nation. Birth of a nation. Okay, student. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing form of a government in India. So which form of a government is in India, that this topic we are discussing. So in India we have three forms of a government, that is one is the state, one government is in the central, okay, and as we know that the capital of our country is New Delhi, okay. So one government is in the central, and as we know that in the present time our country is divided into 28 states and 8 union territories, okay. So one is the central government and another government is the state government, and the next is the local self government, that is in the villages, okay. So we have already discussed that in the central government there are two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. So head of the Lok Sabha is known as the Prime Minister of our country, and these two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, so the minister of these houses help the Prime Minister and President of the country to form the policies for the welfare of the people, okay. So and overall head of the country, that is your president is the head of the country, okay. After that, student, we start discussing about the next, that is the self government, okay. Local self government, that is in the villages, that is the gram panchayat, that is gram panchayat, okay. That is the gram panchayat. So this local self government is in the villages, because every state has villages, towns, cities and big cities. So gram panchayat here, अब क्या होता है ग्राम पंचायत. So how the member of this gram panchayat are elected? By the voting method, and every people who is living in the village whose age is 18 or above 18, they can give the vote at the time of election, and the members are also from the same village. Is it clear? And the members are also from the same village of the gram panchayat, and the who is the head of the gram panchayat, student? So we say it as a sarpanch. We say it as a sarpanch. So sarpanch is the head of the gram panchayat, and gram panchayat is in the villages area. Now what are the functions of these gram panchayats? How they do the welfare of the people of the villages, okay. So what are the functions of the gram panchayat, that we will discuss. Functions of gram panchayat. Functions of the gram panchayat. So how they
help the people living in that villages, how they do the welfare of the people living in that villages. So what are the facilities they provide to the villagers, or you can say what are the facilities they provide to the people living in the villages. Clean drinking water, clean drinking water, okay, clean drinking water. In this what they do, they dig wells in the villages, or even they uh, how they give clean drinking water to the villagers by digging time to time. They dig wells in the villages or with the help of the hand pumps. ओके, आज के प्रेजेंट टाइम में जाओगे तो बेटा आपको सारे विलेजेस में बहुत से हैंड पंप्स है. अब वेल्स तो बहुत कम हो गए हैं. अब पहले ओल्ड टाइम में वेल होते थे, ठीक है, कुएं होते थे, लोग उससे ड्रिंकिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेते थे, ठीक है. आज के प्रेजेंट टाइम में आप विलेजेस में जाओगे तो हर जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हैंड पंप्स मिलेंगे. और हैंड पंप्स में भी गवर्नमेंट ने मोटर्स लगा रखी है जिसे हम लोग समरसेबल बोलते हैं, ठीक है. सो उसमें बिना हैंड से चलाए भी डायरेक्टली पानी आने लगता है हैंड पंप से विद द हेल्प ऑफ द मोटर दैट इज नोन एज अ समरसेबल. ओके, सो this facility is provided to the people of villages by this is the function of gram panchayat, clean drinking water, okay, electricity, okay. So electricity in the villages, this facilities is also provided by the gram panchayat to the people of the villages, because in present time maximum things which are in our houses that run with the electricity, and maximum things in the houses are of electrical equipments and they run with the help of a electricity. So providing electricity to the villager, this is also a function of the gram panchayat. They, ठीक है, birth and death certificate, okay, birth and death certificate, this is also provided. Okay, this birth certificate and death certificate अब मेन है ये वार्ड्स को दे दिया गया है, ठीक है, वार्ड्स में होता है ये बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स. ओके, विलेजेस एरिया के अलग वार्ड होते हैं और शहर के एरिया के अलग वार्ड्स होते हैं, ठीक है. अब ये अकॉर्डिंग टू वो करने लगे हैं, ठीक है. तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद हो गया क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, ओके, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, अगर विलेज में कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो फॉर दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग हो गया, ठीक है. ये हो गया. फिर नेक्स्ट है टाइम टू टाइम सेमिनार्स कराते हैं, ठीक है, सेमिनार्स फॉर द और वर्कशॉप फॉर द, सर कह सकते हो वर्कशॉप फॉर द फार्मर्स. ओके, आप कह सकते हो वर्कशॉप फॉर द फार्मर्स. सो व्हाट वी डू इन दैट, इन द वर्कशॉप ऑफ द फार्मर्स, इन दिस workshop for the farmer, in this what we do, as we know that the main occupation of the people living in the village is cultivation, ठीक है. मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का है वो क्या है, कल्टीवेशन. तो टाइम टू टाइम दे अरेंज द वर्कशॉप फॉर द फार्मर्स सो दैट दे लर्न द न्यू टेक्निक्स, ठीक है.
जिससे उनको नई टेक्निक्स, व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स दे अप्लाई एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। टू सो वो भी होता है गिविंग देम सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के, देखो विलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को सीड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग सीड्स एट द टाइम ऑफ cultivation, so this is also the function of the gram panchayat. And if there is any disputes means अगर आपस में जमीन को लेके या किसी चीज को लेके आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको भी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी काम कौन करती है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स करते हैं, ठीक है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो दे कैन गो टू द कोर्ट। लेकिन छोटे मोटे झगड़े जो आपस में हो जाते हैं लोगों को, तो उनको सॉल्व करने का, उनकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी कौन करते हैं, ग्राम पंचायत ही करती है, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं विच आर रनिंग इन द विलेजेस, तो इन दैट स्कूल्स में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है किसको, स्टूडेंट्स को और किड्स को, तो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में भी कौन हेल्पफुल होता है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। सो सेटअप ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं कह सकते, सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ये सारे गवर्नमेंट ने चलाए हैं स्कूल, लेकिन टू गिव गुड फैसिलिटी टू द स्टूडेंट कमिंग इन दैट स्कूल, दैट अरेंजमेंट इज आल्सो डन बाय द ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, तो उनको एडल्ट एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं इसका अरेंजमेंट भी आपका कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है, ठीक है। सो दीज देयर आर मेनी फंक्शंस विच आर प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द ग्राम पंचायत। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फॉर दिस दे नीड मनी आल्सो। अब इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, विलेज की डेवलपमेंट के लिए अब मनी चाहिए, तो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस मनी, सो दिस मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दैट स्टेट, उस स्टेट की जो कि, क्योंकि ये विलेजेस क्या है, उस स्टेट से, जिस स्टेट से ये विलेज बिलोंग करेगा, तो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी बेटा, वो फंड मनी प्रोवाइड करेगी इन विलेजेस को फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, ठीक है। एक फंक्शन और है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स एंड रिपेयरमेंट ऑफ द रोड्स। भाई विलेजेस में भी रोड होंगे, क्योंकि इफ देयर आर गुड रोड्स देन ओनली यू गेट द गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर आपके विलेज में अच्छे रोड हैं तभी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रोड्स एंड रिपेयरमेंट ऑफ द रोड्स, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ ए ग्राम पंचायत, ठीक है। और टाइम टू टाइम वर्कशॉप, जैसे मैंने बताया ना, वर्कशॉप फॉर द फार्मर्स, तो यहाँ तो फार्मर्स को एजुकेटेड किया गया कि हाउ दे डू कल्टिवेशन बाय अप्लाइंग द न्यू टेक्निक्स, हाउ दे and even seeds are given of a hybrid to the farmers at the time of cultivation so that the production of the crop is increased. In the same manner, time to time seminars are arranged for the villagers in which they tell them about the health and hygiene also, ठीक है। हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड भी टाइम टू टाइम सेमिनार्स कराए जाते हैं विलेजर्स के लिए, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग्स, ओके।
सो क्लीन सराउंडिंग्स, सो दैट, क्योंकि हमें पता है ना बेटा जहाँ हम रहते हैं वहाँ सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी क्लीन सराउंडिंग्स करना है, तो ये भी किसका, ग्राम पंचायत का ही फंक्शन है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बता भी दिया बेटा यहाँ पे, इसके लिए मनी कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज विलेजेस आल्सो कम अंडर द स्टेट, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना किसी स्टेट में क्या क्या होगा, विलेजेस भी होंगे, टाउन्स भी होंगे, सिटी भी होंगी, बिग सिटी भी होंगी। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस द फंड इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, ओके, बाय द स्टेट, ठीक है। जिस स्टेट का विलेज होगा तो वहां की स्टेट क्या करेगी, इसके लिए फंड देगी उस विलेज को, ठीक है। एंड दिस फंड इज गिवन टू द ग्राम पंचायत एंड दे यूटिलाइज दिस फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट विलेज, ओके। नाउ देखो अब नेक्स्ट है स्कूल है। स्कूल का तो हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया था, ठीक है। प्रोवाइड फैसिलिटी इन स्कूल, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी इन स्कूल, ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी इन स्कूल, प्रोवाइड फैसिलिटी इन स्कूल। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके थे, ग्राम पंचायत के थे, ठीक है। दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। इसकी मैं एक बार रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, electricity, planting of a new tree, construction of a building, workshop for the farmers, clean surrounding, provide facilities in school, even if there is any disputes among the villagers। विलेज में देखो अलग अलग रिलीजन्स और कास्ट के लोग रहते हैं, अगर उनमें किसी भी चीज़ को लेके आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का काम भी बेटा किसका है, ग्राम पंचायत का ही है, ठीक है। और फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो दे कैन गो इनटू द कोर्ट, तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये था आपका ग्राम पंचायत। अब नेक्स्ट इसमें दिया है म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज, ओके। तो अब ये जो आपका बुक में दिया है म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो पहले इसको समझ लो कि व्हाट इज अ म्युनिसिपल कमेटी एंड व्हाट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद व्हाट आर द फैसिलिटीज are provided to the people living in the cities by this municipal committee and municipal corporation we will discuss, okay। So first of all student, let's start with the municipal committee। See student, in a small cities, जो छोटे शहर होते हैं, ठीक है बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कमेटी होती है, और जो बिग शहर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हाउ द मेंबर्स, ठीक है, हाउ द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन म्युनिसिपल कमेटी एंड कॉर्पोरेशन। मेथड ऑफ इलेक्टिंग द मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्टिंग द मेंबर इन म्युनिसिपल कमेटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द सेम। दोनों में बिल्कुल सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी में भी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो मेंबर चूज करने का मेथड है इलेक्टेड, वो सेम है, ठीक है, दैट इज द सेम। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो म्युनिसिपल कमेटी है, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज नोन एज अ चेयरमैन, ठीक है। और जो हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जो बड़े शहरों में इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, एंड इन द स्मॉल सिटी वी से इट एज अ म्युनिसिपल कमेटी, ओके। सो मेथड ऑफ इलेक्टिंग द मेंबर्स, जो मेंबर चूज किए जाते हैं उनको चूज करने का मेथड तो दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो म्युनिसिपल कमेटी का जो हेड होगा, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज नोन एज
chairman, and the head of the municipal corporation is known as mayor. Okay, we will continue this topic in the next video. Thank you, student.